Hello everybody. Again, namaskar and pranam to all my friends. Again, I am coming back to my channel Asit Sarikomania. Myself Asit Kumar Patnaik. Uh, in my video today, I will discuss investment multiplier. It is the most important concept of Keynesian theory. My friends, if you like my video and if my video is attractive for you, then please subscribe me, comment me, and like me. So due to this, I'm getting encouragement and motivation to bring some new videos in posting time. Uh, so it means I do not want to waste more time. So let's start. Today my topic is investment multiplier. In this topic, today I will discuss two concepts. One is the forward working of the multiplier and one is the backward working of the multiplier. So I think that the discussion would be more interesting one. So please watch it means till the end. According to J.M. Keynes, John Maynard Keynes advocated that investment multiplier refers to the ratio of final change in income to initial change in investment. It means Keynes believed that final increase in income is multiple of initial increase in investment. Clear? So multiplier formula, it is multiplier, symbolically it is K. It is equal to delta Y by delta I. Delta Y is the final change in income divided by delta I. It is initial change in investment. Change means suppose we consider increase or decrease, but here we consider it is delta Y, it is final increase in income divided by initial increase in investment. मैं इसको थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ जैसे एक फार्मर ने 50,000 इन्वेस्ट किया क्रॉप प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन के बाद उसको 2 लाख प्राप्त हुआ, तो इससे पता चलता है कि हाउ मच मनी ही अर्नड फ्रॉम द प्रोडक्शन, इट इज 4 टाइम्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट. जैसे मेरा जो एग्जाम्पल है, एक फार्मर ने 50,000 इन्वेस्टमेंट किया, उसको 2 लाख प्राप्त हुआ प्रोडक्शन से, सो उसको 4 गुना फायदा हुआ. ये जो 4 गुना फायदा हुआ, ये जो 4 गुना को हम बोलेंगे मल्टीप्लायर. सो मेन मकसद यही होता है, मेन इंटेंशन of the producers and investors. They expect that, they predict that, they forecast that their final increase in income definitely would be multiple of initial increase in investment. इससे पता चलता है कि मल्टीप्लायर क्या शो करता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या शो करता है. यही शो करता है कि एक इन्वेस्टर जब एडिशनल इन्वेस्टमेंट करता है, उसको जो फाइनल इनकम में जो वृद्धि होता है वो कितना गुना एडिशनल इन्वेस्टमेंट का होता है. इट मीन्स इफ द इन्वेस्टर इन्वेस्ट एडिशनल फंड्स और एडिशनल मनी टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज, ultimately final increase in income, it means it is how much multiple of additional investment or initial investment, यही देखना है हमको. तो एक्चुअली मल्टीप्लायर यही शो करता है कि फाइनल इंक्रीज इन इनकम इज मल्टीपल ऑफ इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. तो जो इंक्रीज इन इनकम, जो इनकम में वृद्धि होता है, वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट का कितना गुना होता है, इसी को मल्टीप्लायर शो करता है. मल्टीप्लायर शोज दैट फाइनल इंक्रीज इन इनकम इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट. इंक्रीज इन इनकम इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट. जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट होता है, जो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट होता है, उसका कितना गुना इनकम में वृद्धि होता है, यही है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. सो अकॉर्डिंग टू केन्स, investment multiplier is the ratio of final increase in income to initial increase in investment. Same definition already I have written. And also he believed that
always final increase in income is multiple of initial increase in investment. So the formula of investment multiplier, it is equal to delta y by delta I. Delta y, it is final increase in income divided by delta I, it is initial increase in investment. One example you see, an additional or increase in investment of rupees 3000 crores in an economy generates an increase in income of rupees 15,000 crores. यदि हमारा इकोनॉमी में एडिशनल इन्वेस्टमेंट 3000 करोड़ होता है तो हमारा इकोनॉमी में फाइनल इंक्रीज इन इनकम 15,000 करोड़ होता है, तो उससे जो फाइनल इंक्रीज इन इनकम है वो कितना गुना है एडिशनल इन्वेस्टमेंट का, यही देखेंगे. ओके, सो यहां पर जो एग्जांपल में इन इकोनॉमी एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 3000 करोड़ एंड अल्टीमेटली फाइनल इंक्रीज इन इनकम is rupees 15,000 crores. So in this case multiplier is equal to 5. It means final increase in income is 5 times of additional investment. यहाँ पर जो इनकम में वृद्धि हुआ वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट का व इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट का 5 गुना हुआ. यही 5 गुना को हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोलेंगे, क्योंकि इसी इंटेंशन में प्रोड्यूसर्स एंड इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं कि हमें अभी वो एक इन्वेस्टर यही सोचता है, वो यही प्रेडिक्ट करता है, मैं अभी कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे जो मेरा जो इनकम में वृद्धि होगा वो कितना गुना होगा, मेरा जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है उसका कितना गुना आय में वृद्धि होगा, यही इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर शो करता है. तो ऑलवेज एक्चुअली इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर शोज दैट इट मीन्स फाइनल इंक्रीज इन इनकम इज हाउ मेनी टाइम्स इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. ओके, सो इट मीन्स वही चीज में लिख दिया, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर शोज दैट फाइनल इंक्रीज इन इनकम इज मल्टीपल ऑफ इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. अभी हम जाएंगे कि रिलेशनशिप देखेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एमपीसी. जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वी नो दैट इट इज द स्लोप ऑफ द कंजप्शन कर्व. व्हाट शोज बाय द एमपीसी. एमपीसी क्या शो करता है कि एमपीसी का क्या मीनिंग है, एमपीसी का क्या इंपॉर्टेंस है. मेरा प्रीवियस वीडियो में आप देखिए, एमपीसी शोज दैट हाउ मच परसेंटेज ऑफ एडिशनल इनकम यूज्ड फॉर कंजप्शन. एडिशनल इनकम का कितना परसेंटेज हम कंज्यूम करते हैं, क्योंकि एडिशनल इनकम का कुछ भाग हम कंज्यूम करते हैं और कुछ भाग हम सेविंग करते हैं. टोटल इनकम नहीं लेंगे, एडिशनल इनकम और इंक्रीज इन इनकम. सो हाउ मच परसेंटेज ऑफ एडिशनल इनकम और इंक्रीज इन इनकम यूज्ड फॉर कंजप्शन, इट इज एमपीसी. तो इसमें एक्चुअली डायरेक्ट रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है. देयर इज डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एमपीसी. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एमपीसी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है, क्योंकि एमपीसी यही शो करता है कि एडिशनल इनकम का कितना परसेंटेज कंज्यूम होगा. ओके, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जस्ट टू रिमेंबर द फॉर्मूला, देन आफ्टर दैट it means just I will show that it means how to derive the formula between investment multiplier and MPC. You check investment multiplier, it is equal to 1 by 1 minus MPC, 1 divided by 1 minus MPC. Okay, जब ये है when MPC is higher one then multiplier increases. Same thing I have written. When MPC is higher one then investment multiplier increases. MPC is higher one means more percentage of additional income used for consumption. The people spend more percentage of additional income or increase in income used for consumption. जो additional जो higher MPC होता है वो additional income का व increase in income का ज़्यादा भाग खर्च होता है, ज्यादा भाग कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है. उसमें क्या होता है, जितना कंजप्शन एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा. एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से क्या होगा ना, इट बूस्ट द प्रोड्यूसर्स, इट स्टिमुलेट द प्रोड्यूसर्स एंड इन्वेस्टर्स टू पुट मोर मनी इन द बिजनेस, टू इन्वेस्ट मोर मनी, टू इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन. जब हम एडिशनल इनकम का ज्यादा भाग खर्च करेंगे ऑटोमेटिकली एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा. एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, वो प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे. ओके, प्रोडक्शन बढ़ने से
क्या होगा, वन साइड में क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएगा, क्लियर, लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा, देन अल्टीमेटली फिर इनकम बढ़ेगा, फिर इनकम बढ़ने से फिर क्या होगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो ये एक प्रोसेस होता है, एक वर्चुअस साइकिल जैसा होता है। तो एमपीसी बढ़ने से मल्टीप्लायर बढ़ता है और एमपीसी कम होने से मल्टीप्लायर कम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वन, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। So there is a direct or positive relationship between investment multiplier and MPC. Okay, when MPC increases, then investment multiplier increases and vice versa. So what is the formula of investment? It means investment multiplier in terms of MPC. Now investment multiplier is equal to 1 divided by 1 minus MPC. Okay, also it means I will discuss the proof. It means how can it means just we arrive at the conclusion that investment multiplier is equal to 1 by 1 minus MPC. So in case of higher MPC, multiplier increases, and higher MPC means people spend more portion of the additional income or increase in income for consumption purposes. So in this case value of multiplier increases. Similarly in case of lower MPC, जब MPC कम होता है, MPC कम होने का कारण क्या है ना, जो एडिशनल इनकम का कम पोर्शन कंजप्शन एक्सपेंडिचर के लिए खर्च किया जाता है। In case of lower MPC, less portion of the additional income, less portion of the increase in income used for consumption purposes. और जो एडिशनल इनकम ज़्यादा भाग सेविंग होगा। ओके, एडिशनल इनकम का ज़्यादा भाग सेविंग होगा कब, जब एमपीसी कम होगा। तो इन केस ऑफ लोअर एमपीसी, पीपुल स्पेंड लेस पोर्शन ऑफ देयर एडिशनल और इंक्रीज इन इनकम ऑन कंजप्शन। इन सच ए केस मल्टीप्लायर डिक्रीजेस। ये कॉमन चीज़ है, जब हम एडिशनल इनकम का कम भाग खर्च करेंगे ऑटोमेटिकली एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा। क्लियर, एग्रीगेट डिमांड कम होगा तो इट इज डिसइंसेंटिव फॉर द प्रोड्यूसर्स टू इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। Okay, so when consumption expenditure is less, then automatically aggregate demand is less. Then producers cut the production, producers decline the production, production को कम कर देंगे. Due to this also, it means unemployment is arising. Okay, employment opportunities also decreases, level of output decreases, income level decreases. Then when income level decreases, then again consumption decreases, again aggregate demand decreases. Okay, so again producers reduce the production. अगेन इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट अराइजिंग इन द इकोनॉमी। तो ये चीज़ है, ये जो है विशियस साइकिल की तरह होता है, ये अच्छा नहीं है। ओके, एक इकोनॉमी को वो रिसेशन फेज में ले सकता है। सो इट मीन्स जो रिलेशनशिप है मल्टीप्लायर और एमपीसी के बीच में डायरेक्ट और पॉजिटिव होता है। एमपीसी बढ़ने से मल्टीप्लायर बढ़ता है और एमपीसी कम होने से मल्टीप्लायर कम होता है। सो देयर इज डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। व्हेन एमपीसी इंक्रीजेस, देन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इंक्रीजेस, and when MPC decreases, then investment multiplier decreases. तो इट मीन्स यही पता चलता है कि हम एडिशनल इनकम का ज़्यादा भाग खर्च करेंगे तो मल्टीप्लायर बढ़ेगा, और एडिशनल इनकम का हम कम भाग खर्च करेंगे तो हमारा मल्टीप्लायर कम होगा। क्लियर? सो एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप दे दिया यहाँ पर, मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड MPC, and here just I prove that it means multiplier it is equal to 1 by 1 minus MPC. You see, we know that at equilibrium level of income, aggregate demand equal to aggregate supply. In previous video already I have discussed. Aggregate demand actually in two sector model, it is household consumption expenditure plus private investment expenditure. Okay, it is the aggregate demand, and aggregate supply is equal to national income. So AD is equal to C plus I and AS is equal to Y. So overall it is or Y is equal to C plus I. Okay. Income is equal to consumption expenditure plus investment expenditure. Okay, so first thing you remember, at equilibrium level of income, aggregate demand equal to aggregate supply, and aggregate demand mainly depend upon household consumption expenditure, it is capital C, and private investment expenditure, it is capital I. So D represents C plus I, and aggregate supply is national income, or Y is equal to C plus Y. Then both side you consider the change. Okay, delta Y, delta means change. Okay, change Y is equal to change of consumption plus change of investment. Clear? Left side change of income, it is equal to change of consumption plus change of investment. Then both the sides divide delta Y. दोनों sides में हम delta Y को divide करेंगे तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा 1 is equal to delta C by delta Y plus delta I by delta Y.
मगर हमको पता है कि जो और 1 इज इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, इट इज एमपीसी. ओके, चेंज इन कंजप्शन बाय चेंज इन इनकम, इट इज एमपीसी. प्लस डेल्टा आई बाय डेल्टा वाई, इट इज 1 बाई के, क्योंकि मल्टीप्लायर का फॉर्मूला डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, फाइनल चेंज इन इनकम बाय इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट, पहले से मैं बता चुका हूँ. इट इज द फॉर्मूला ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. Also it is final increase in income divided by initial increase in investment. Okay, delta y by delta I. So delta I by delta y, it is 1 by k. If k is equal to delta y by delta I, then reciprocal you consider. K is equal to delta y by delta I, you consider taking reciprocal on both the sides. K to the power minus 1 is equal to delta y by delta I to the power minus 1. So delta I by delta y, it is 1 by k. Then 1 minus MPC is equal to 1 by k, और k is equal to 1 by 1 minus MPC. इसी तरीके से हम जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एमपीसी के बीच में रिलेशन होता है, और ये फॉर्मूला को आपको रिमेंबर करना है. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस एमपीसी. थोड़ा हम वैल्यू को देखेंगे. जब एमपीसी जीरो होगा, एमपीसी कब जीरो होगा ना, जब पूरा एडिशनल इनकम को हम सेव कर देंगे. एंटायर एडिशनल इनकम यूज्ड फॉर सेविंग, इट मीन्स एडिशनल कंजप्शन इज जीरो. MPC 0 means entire additional income used for saving. Same thing I have written, delta y is equal to delta s, or additional consumption is equal to 0. Then at that time investment multiplier is equal to 1. Okay, just you put the value of MPC is equal to 0, then definitely k is equal to 1. It is the minimum value of the multiplier. It is very important one. So minimum value of the multiplier is 1. Next one, when MPC is equal to 1, MPC is equal to 1 means entire additional income used for consumption. जितना एडिशनल इनकम होगा, जितना इंक्रीज इन इनकम होगा, उसको पूरा हम खर्च कर देंगे. इट मीन्स डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी, एंटायर एडिशनल इनकम यूज्ड फॉर एडिशनल कंजप्शन. देयर इज नो एडिशनल सेविंग, एंड इन दिस केस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू इन्फिनिटी. जस्ट यू, इट मीन्स मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 by 1 minus MPC. If MPC is 1, 1 minus 1 0, denominator 0, numerator 1, 1 by 0 is infinity. So it is the maximum value of the multiplier. So just to remember, minimum value of the multiplier is 1 and maximum value of the investment multiplier is infinity. Clear? The next one example you see. It means in example we have to show that when MPC increases, then investment multiplier increases, and vice versa. So you see, when MPC is equal to 0.5, it means 50% of additional income used for consumption. Additional income का 50% हम consumption करेंगे. Clear? MPC is equal to 0.5 means 50% of additional income or increase in income used for consumption. So in this case, investment multiplier is equal to 2. Okay, investment multiplier is equal to 2 means, it means final increase in income is twice the initial increase in investment. जितना इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, उसका 2 गुना फाइनल इनकम में वृद्धि होगा. ओके, सो हियर मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 2 means फाइनल इंक्रीज इन इनकम इज ट्वाइस ऑफ इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. जितना इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होगा, उसका 2 गुना ओके इनकम में वृद्धि होगा. क्लियर? नेक्स्ट, थोड़ा एमपीसी को हम बढ़ा देंगे. पहले क्या था, हम एडिशनल इनकम का 50% खर्च कर रहे थे. अभी नाउ एमपीसी इज इंक्रीज्ड टू 0.8. इट मीन्स 80% ऑफ एडिशनल इनकम यूज्ड फॉर कंजप्शन और 20% ऑफ एडिशनल इनकम यूज्ड फॉर सेविंग. पहले क्या था, 50% ऑफ एडिशनल इनकम यूज्ड फॉर कंजप्शन, मगर अभी 80% ऑफ एडिशनल इनकम यूज्ड फॉर कंजप्शन. एडिशनल इनकम का हम ज्यादा भाग अब भी हम क्या करेंगे, खर्च करेंगे. तो मल्टीप्लायर बढ़ जाएगा. देखो, मल्टीप्लायर 5 होगा. जब एडिशनल इनकम का 50% खर्च कर रहे थे तो मल्टीप्लायर 2 था. जब एडिशनल इनकम का 80% खर्च किया जाएगा तो मल्टीप्लायर 5 हो गया. इट मीन्स फाइनल इंक्रीज इन इनकम इज 5 times इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. ओके, इन्वेस्टमेंट में जितना वृद्धि होगा, उसका 5 गुना इनकम में वृद्धि होगा. ओके, इससे पता चलता है व्हेन एमपीसी इंक्रीजेस देन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा. तो इससे पता चलता है हम एडिशनल इनकम का जितना ज्यादा भाग खर्च करेंगे वो अच्छा है. एडिशनल इनकम का ज्यादा भाग लोग खर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा. एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से जस्ट इट स्टिमुलेट द प्रोड्यूसर्स. It is an incentive for the producers to increase the level of production. Due to this, more employment opportunities generated in the economy. Level of output increases. Then also income level increases. And it is like a virtuous cycle. When income level increases, again consumption expenditure increases. Because consumption expenditure mainly depend upon income. When again consumption expenditure increases,
then again it means aggregate demand increases and it is boost for the investors and producers again to increase the level of production. ओके तो ये अच्छा है। तो इसमें कंक्लूजन यही ड्रॉ होता है कि एमपीसी बढ़ने से मल्टीप्लायर बढ़ेगा और एमपीसी कम होने से मल्टीप्लायर कम होगा। कभी कभी एग्जाम्पल जैसा क्वेश्चन पूछता है कि रिलेशनशिप दो, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एमपीसी विथ एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल देना है आपको। यहाँ पर मैथमेटिकल रिलेशनशिप आपको नहीं देना है। मैथमेटिकल रिलेशनशिप इसीलिए बता दिया कि कैसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, उसको कैसे हम डिराइव करेंगे मैथमेटिकली। क्लियर? जब यही क्वेश्चन पूछेगा कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एमपीसी, आपको सिंपली लिखना है पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एमपीसी, और व्हेन एमपीसी इज हायर वन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इंक्रीजेस, व्हेन एमपीसी इज लोअर वन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर डिक्रीजेस, और फॉर्मूला को लिखना है और एग्जाम्पल दे देना है। क्लियर? ये एग्जाम्पल देना है। सिमिलरली नेक्स्ट वन, रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एमपीएस, marginal propensity to save. So my friends, again I request to you, please comment me, please like me, please subscribe my channel Asit Sir Ecomania, myself Asit Kumar Patnaik. So please आपका कमेंट से आपका लाइक से थोड़ा क्या हुए मुझे और अच्छा लगेगा और अच्छा अच्छा वीडियो में आगे मैं लाऊंगा। तो लाइक करने से कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा लाइक तो कर दीजिए और कमेंट कीजिए कहाँ पर कमी है, उसी से मैं सुधार लाऊंगा। जस्ट यू कमेंट मी सो दैट जस्ट आई विल डिटेक्ट इन व्हिच एरिया आई एम हैविंग लैकिंग, जस्ट आई वांट टू डिटेक्ट माय lacuna, then according to this again it means I modify my videos and again I bring some good videos. So now friends, I will discuss relationship between investment multiplier and MPS. MPS ये होता है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। वो क्या होता है कि एडिशनल इनकम का कितना परसेंटेज हम सेव करेंगे, हाउ मच परसेंटेज ऑफ एडिशनल इनकम और हाउ मच परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन इनकम यूज्ड फॉर सेविंग। क्योंकि जो एडिशनल इनकम होता है डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। एडिशनल इनकम का कुछ पार्ट हम कंज्यूम करेंगे वो एमपीसी है, और एडिशनल इनकम का जो कुछ पार्ट हम सेव करेंगे वही एमपीएस है। तो एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। यदि एमपीसी 0.6 है, एमपीसी 0.6, इट मीन 60% ऑफ एडिशनल इनकम यूज फॉर कंजप्शन, देन ऑब्वियसली एमपीएस 0.4 होगा। इट मीन्स 40% ऑफ एडिशनल इनकम यूज फॉर सेविंग। क्लियर? 60% ऑफ एडिशनल इनकम यूज फॉर कंजप्शन, देन 40% ऑफ एडिशनल इनकम यूज फॉर सेविंग। So 60% means 0.6 MPC, 40% of additional income used for saving means MPS is 0.4. तो जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में फॉर्मूला बोला था K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, हमको पता है कि MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1, सो 1 माइनस MPC इज इक्वल टू MPS। क्लियर? MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1, देन 1 माइनस MPC इज इक्वल टू MPS, सेम थिंग 1/MPS। यदि आप रिलेशनशिप दिखाएंगे मल्टीप्लायर एमपीसी के बीच में, देन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी। यदि आप दिखाएंगे रिलेशन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एमपीएस, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 बाय एमपीएस ऑब्वियसली, क्योंकि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। अभी मैं आपको बताया कि एडिशनल इनकम का कुछ परसेंटेज हम कंज्यूम करेंगे वो एमपीसी है, और कुछ भाग हम सेव करेंगे वो एमपीएस है। तो एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। क्लियर? अभी मैं बताया, उसको क्लैरिफाई किया। यदि एमपीसी 0.6 है, 60% ऑफ एडिशनल इनकम यूज्ड फॉर कंजप्शन, देन 40% ऑफ एडिशनल इनकम यूज्ड फॉर सेविंग। तो एमपीसी 0.6 है, तब एमपीएस क्या होगा? 0.4। तो जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एमपीएस के बीच में जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एमपीएस। Okay, there is a negative relationship between investment multiplier and MPS. It means when MPS increases, then investment multiplier decreases and vice versa. MPS जब बढ़ जाएगा तब investment multiplier कम हो जाएगा, क्योंकि obviously we know that if people save more percentage of additional income, if people save more percentage of increase in income, यदि लोग एडिशनल इनकम और इंक्रीज इन इनकम का ज्यादा भाग सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली कंजप्शन एक्सपेंडिचर कम होगा। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर सेविंग ज्यादा होगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कम होगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कम होने से एग्रीगेट डिमांड कम होगा, एग्रीगेट डिमांड कम होने से प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे? वो प्रोडक्शन को कम कर देंगे, प्रोडक्शन को कम करने से इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट आएगा। प्रीवियस वीडियो में बोला था इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, दोज पीपल
having willingness and ability to do work at the prevailing wage rate but unfortunately not getting job opportunities. तो ये हम एडिशनल इनकम का ज़्यादा भाग सेव करेंगे तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छा संकेत नहीं है. ये पीपल save more percentage of additional income, then automatically due to this consumption expenditure decreases, then aggregate demand decreases, then it is a disincentive for the producers. Basically it adversely affects the producers, so producers reduce the production, producers decline the production, producers curb the production. Due to this employment also decreases, involuntary unemployment arising in the economy, output level कम हो जाएगा, it reduce the output level and also income level. Then when again income level decreases, then again consumption expenditure decreases, again aggregate demand decreases, again producers reduce the level of production, again level of output decreases, again my employment decreases. So ये vicious cycle है, ये इकोनॉमी को रिसेशन फेज में ले जाएगा, तो अच्छा नहीं है. तो इसलिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एमपीएस के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है. जब एमपीएस ज़्यादा होगा, जब हम एडिशनल इनकम का ज़्यादा भाग सेव करेंगे, तब में क्या होगा, मल्टीप्लायर कम हो जाएगा. जो फाइनल इंक्रीज इन इनकम होगा वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा गुना नहीं होगा. ओके, सभी समय यही इन्वेस्टर यही सोचता है कि मैं कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर देता हूं, जैसे मेरा जो फाइनल इंक्रीज इन इनकम होगा वो ज़्यादा गुना होना चाहिए इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट का. यही सबका सोच है. पर कभी कभी क्या होता है, ये जो ज़्यादा सेविंग होने के वजह से थोड़ा कंजप्शन एक्सपेंडिचर कम हो जाता है और एग्रीगेट डिमांड कम हो जाता है, प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन को कम कर देते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, ओके, लेवल ऑफ आउटपुट कम हो जाता है, इनकम लेवल कम हो जाता है. तो इसके वजह से क्या हुआ कि जो इन्वेस्टमेंट किया गया, जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया गया, जो इन्वेस्टमेंट में वृद्धि हुआ, उससे क्या हुआ ना, जो इनकम में वृद्धि हुआ वो ज़्यादा गुना वृद्धि नहीं हुआ. समझ में आ रहा है? तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एमपीएस एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. सेम थिंग आई हैव रिटन. व्हेन एमपीएस इंक्रीजेस मीन्स people save more portion of the additional income. People save more portion of the increase in income for saving, and automatically it means less portion of the additional income or increase in income used for consumption expenditure. वो it means additional income का ज़्यादा भाग सेव करेंगे तो investment multiplier decreases. Similarly, when MPS decreases, it means less portion of the increase in income used for saving. MPS कम होगा मीन्स वो एडिशनल इनकम और इंक्रीज इन इनकम का कम भाग क्या होगा, सेविंग होगा, ज़्यादा भाग कंजप्शन एक्सपेंडिचर होगा. ये अच्छा है, इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बढ़ जाएगा. तो इसमें रिलेशनशिप जो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एमपीएस के बीच में वो क्या है, इन्वर्स है, नेगेटिव रिलेशनशिप है. तो एक एग्जाम्पल दे दिया, व्हेन एमपीएस इज इक्वल टू 0.8, इट मीन्स 80% ऑफ एडिशनल इनकम यूज्ड फॉर सेविंग. एडिशनल इनकम का 80% सेव किया जाएगा. तो अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला, इट मीन्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इन टर्म्स ऑफ एमपीएस, इट इज 1/MPS, इट इज इक्वल टू 1.25. देखिए, जब एमपीएस ज़्यादा हुआ तो हमारा मल्टीप्लायर जो हुआ 1.25 हुआ. इट मीन्स फाइनल इंक्रीज इन इनकम इज ओनली 1.25 टाइम्स इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. बहुत कम हुआ ना. जो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर ने किया, तो वो क्या किया ना, ओनली 1.25 टाइम्स इनकम को वृद्धि किया, क्योंकि ज़्यादा सेविंग हो गया, वहाँ पर कंजप्शन एक्सपेंडिचर कम हो गया. तो इसके वजह से क्या हुआ ना, डेफिनेटली इसमें क्या हुआ, जो मल्टीप्लायर हुआ, जो इनकम में वृद्धि हुआ, वो इतना ज़्यादा गुना वृद्धि नहीं हुआ. तो जब एमपीएस को हम कम कर देंगे थोड़ा, अभी एमपीएस को 0.5 ले आएंगे, व्हेन एमपीएस रिड्यूस टू 0.5, इट मीन्स 50% ऑफ एडिशनल इनकम यूज्ड फॉर सेविंग. पहले 80% था एडिशनल इनकम का सेव कर रहे थे, नाउ 50% ऑफ एडिशनल इनकम यूज्ड फॉर सेविंग, इन दिस केस मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 2. तो अभी बढ़ गया ना. तो इट मीन्स फाइनल इंक्रीज इन इनकम इज ट्वाइस द इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. जितना इन्वेस्टमेंट में वृद्धि हुआ, उससे क्या हुआ ना, इनकम में 2 गुना वृद्धि हुआ. पहले क्या था, 1.25 टाइम्स था, क्योंकि उस समय एमपीएस 0.8 था, क्योंकि 80% ऑफ एडिशनल इनकम यूज्ड फॉर सेविंग. मगर अभी एमपीएस कम हो गया, ओनली एडिशनल इनकम का 50% सेव हुआ. तो इससे क्या हुआ, मल्टीप्लायर 2 गुना बढ़ गया. इट मीन्स जो इनकम में वृद्धि हुआ वो कितना वृद्धि हुआ ना, 2 गुना. जो इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट था, जो इन्वेस्टमेंट में वृद्धि किया गया, उसका 2 गुना इनकम में वृद्धि हुआ.
तो इससे पता चलता है व्हेन एमपीएस डिक्रीजेस देन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। सिमिलरली जब वैल्यू को हम आएंगे व्हेन एमपीएस इज इक्वल टू 1, एमपीएस इज इक्वल टू 1 मीन्स एंटायर एडिशनल इनकम यूज फॉर सेविंग, पूरा एडिशनल इनकम को हम सेव करेंगे, तब एडिशनल कंजप्शन 0 होगा, तब क्या होगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 1 होगा। मैं पहले बता चुका हूँ मिनिमम वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर इज 1। जब एमपीएस 0 होगा, एमपीएस कब 0 होगा ना, व्हेन एंटायर एडिशनल इनकम यूज फॉर कंजप्शन, पूरा एडिशनल इनकम को हम कंज्यूम कर देंगे और एडिशनल सेविंग 0 होगा, देन वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर इन्फिनिटी होगा। देखिए जब एमपीएस जितना कम होगा, एडिशनल इनकम का जितना कम हम सेव करेंगे वो अच्छा है, उससे क्या होगा, ज़्यादा फायदा इन्वेस्टर्स और प्रोड्यूसर्स को मिलेगा। तो इससे भी पता चला कि जो मिनिमम वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर 1 है और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर इन्फिनिटी है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर, शो इट थ्रू न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। तो आपको एग्जाम्पल दे के करना है कि यही है, आप एमपीसी में दिखाओ कि एमपीएस में दिखाओ, ठीक है। एमपीसी में दिखाओगे तो के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, और एमपीएस में दिखाओगे तो के इज इक्वल टू 1/एमपीएस। तो वहाँ पर दो वैल्यू लेना है, यहाँ पर जैसे एमपीएस में लिया, एमपीएस 0 लिया और एमपीएस 1 लिया। ओके, एमपीएस जब 0 हुआ तब मल्टीप्लायर का वैल्यू इन्फिनिटी हुआ, मैक्सिमम वैल्यू। जब एमपीएस 1 होगा तब मल्टीप्लायर का वैल्यू 1 होगा। ओके, वो मिनिमम वैल्यू है। तो एक्चुअली रेंज ऑफ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज लाइक दिस, यू सी 1 less than equal to k less than equal to infinity. It means maximum value of the multiplier is infinity and minimum value of the multiplier is 1. ओके, तो फ्रेंड्स अभी जो डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर। इसी में हम दिखाएंगे कि कैसे जब हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर, जब प्रोड्यूसर्स एंड इन्वेस्टर्स वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे कैसे उनका जो इंक्रीज इन इनकम होता है वो मल्टीपल्स ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट होता है, कि इट इज मल्टीपल्स ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, उसी को हम यहाँ पर चेक करेंगे। जस्ट इन फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर is it means shows that it means always the final increase in income is multiple of initial increase in investment। जो फाइनल इंक्रीज इन इनकम होगा वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट का मल्टीपल होगा। क्लियर? इफ विथ इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट देन फाइनल इंक्रीज इन इनकम इंक्रीजेस मल्टीपल टाइम्स देन द इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। यही फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर हम शो करेंगे। यदि हम प्रोड्यूसर्स एंड इन्वेस्टर्स कुछ इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे तो इसमें क्या होगा ना, जो इंक्रीज इन इनकम होगा वो कितना गुना होगा एडिशनल इन्वेस्टमेंट का, यही इसी में हम शो करेंगे, उसको दिखाएंगे। ओके, इसको कहा जाता है इनकम प्रोपागेशन ऑल्सो। ओके, इट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग मल्टीप्लायर। प्रोसेस थोड़ा मैं बता देता हूँ, क्योंकि एडिशनल इन्वेस्टमेंट जनरेट्स एडिशनल इनकम। ऑब्वियसली जब थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तब लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा, लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ने से लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा। तो ऑलवेज एडिशनल इन्वेस्टमेंट जनरेट्स एडिशनल इनकम। फिर हम देखेंगे एडिशनल इनकम से क्या होता है। अच्छा, एडिशनल इनकम से हमारा एडिशनल कंजप्शन होता है। एडिशनल इनकम का जैसे चेंज इन एडिशनल कंजप्शन, क्योंकि जब इनकम में वृद्धि होगा तब डेफिनेटली कंजप्शन में वृद्धि होगा। तो एडिशनल इनकम यू नो दैट इट इज वन पार्ट इज डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। पार्ट ऑफ द एडिशनल इनकम यूज्ड फॉर कंजप्शन इट इज डेल्टा सी, पार्ट ऑफ द एडिशनल इनकम यूज्ड फॉर सेविंग इट इज डेल्टा एस। तो एडिशनल इनकम का जैसे चेंज इन कंजप्शन। अच्छा, जो चेंज इन कंजप्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है ना, एमपीसी के ऊपर। मैं बार बार बताया एमपीसी क्या शो करता है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ एडिशनल इनकम और हाउ मच परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन इनकम यूज फॉर कंजप्शन। जो एडिशनल इनकम और इंक्रीज इन इनकम का कितना परसेंटेज हम कंज्यूम कर रहे हैं। ओके, तो भाई ये चेंज इन कंजप्शन मेनली डिपेंड अपॉन एमपीसी। एमपीसी ज्यादा है तो डेल्टा सी ज्यादा होगा, तो एमपीसी कम है तो डेल्टा सी कम होगा। ओके, देन एडिशनल कंजप्शन, अगेन एडिशनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जनरेट्स एडिशनल इनकम, क्योंकि वी नो दैट इट मीन्स वन पर्सन एक्सपेंडिचर इट इज इनकम ऑफ अनदर पर्सन। जो हमारा जो एक्सपेंडिचर है, जो कंज्यूमर्स का कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, वो प्रोड्यूसर्स का इनकम है। तो जैसे यहाँ पर वही एडिशनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जनरेट्स एडिशनल इनकम। सो दिस प्रोसेस कीप्स रिपीटिंग टिल ये प्रोसेस रिपीट होगा। रिपीट और एक बार बता रहा हूँ कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट से एडिशनल इनकम जनरेट होगा, एडिशनल इनकम से कंजप्शन में चेंज आएगा, देन जब कंजप्शन में चेंज आएगा तब हमारा एडिशनल इनकम में चेंज आएगा। तो दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। एडिशनल इनकम जनरेट्स एडिशनल इन्वेस्टमेंट जनरेट्स एडिशनल इनकम। ओके, देन एडिशनल इनकम का जैसे चेंज इन कंजप्शन। ओके, एडिशनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जनरेट्स एडिशनल इनकम। जो हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो प्रोड्यूसर्स का इनकम है।
जो हमारा एडिशनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो प्रोड्यूसर्स का एडिशनल इनकम है। मैं बार बार बताया, वन पर्सन कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम। क्लियर? So this process keeps repeating till the total increase in income equals the product of multiplier and increase in investment. Definitely delta y is equal to k into delta I. K is the multiplier. It means final increase in income, इसको हम k से show करेंगे. How to read it? Delta y, it is increase in income, final increase in income. K is equal to multiplier into initial increase in investment. So final increase in income is multiple of initial increase in investment. जो मल्टीपुल है वो के है, वही है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ओके, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट का जो इंक्रीज इन इनकम होगा वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट का कितना गुना होगा। जो इंक्रीज इन इनकम होगा वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट का कितना गुना होगा, और इट मीन्स हाउ मेनी टाइम्स इट इज द मल्टीपुल ऑफ इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। भाई मल्टीपुल को हम मल्टीप्लायर, जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा आई। सिंबलिकली ये जो जनरेशन जो प्रोसेस है मैं वही बताया, एडिशनल इन्वेस्टमेंट जनरेट्स एडिशनल इनकम ऑटोमेटिकली। जब एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगा तब प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा, लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ने से लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा, तो इनकम बढ़ने से कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, फिर कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ने से फिर इनकम बढ़ेगा, क्योंकि हमारा जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो प्रोड्यूसर्स का इनकम है। Okay, so it means basically in the working of the multiplier, in the process of multiplier, additional investment generates additional income. Additional income leads to additional consumption. Additional consumption leads to again additional income. Then cyclically this process is going on. Okay, so you see here एक assumptions ले लिया। अभी हम उसी मल्टीप्लायर को एक एग्जाम्पल में शो करेंगे वही प्रोसेस को, कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट ₹1000 करोड़। यहाँ पर जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है वो 1000 करोड़ से, इट मीन्स इन्वेस्टमेंट में वृद्धि हुआ 1000 करोड़, और एमपीसी 0.8 है। एमपीसी मीन्स 80% ऑफ एडिशनल इनकम यूज्ड फॉर कंजप्शन। जो एडिशनल इनकम का 80% खर्च होगा, इसको मैं अज्यूम किया। ओके, उसी के हिसाब से एक टेबल करेंगे। राउंड 1 देखिए, एडिशनल इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़। सो इन फर्स्ट राउंड जितना एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगा उतना एडिशनल इनकम होगा। अच्छा, एडिशनल इनकम अभी हो गया 1000 करोड़, तो एडिशनल इनकम का कितना परसेंटेज हम खर्च करेंगे? 0.8। हाउ मच परसेंटेज ऑफ एडिशनल इनकम यूज्ड फॉर कंजप्शन? इट शोज बाय एमपीसी, इट इज 0.8। 80% ऑफ एडिशनल इनकम यूज्ड फॉर कंजप्शन। तो डेल्टा आई लीड्स टू डेल्टा वाई। जितना इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज इन इनकम है, तो इंक्रीज इन इनकम का कितना परसेंटेज अभी कंजप्शन एक्सपेंडिचर होगा? 80%, तो 800 है। तो सेविंग डेल्टा एस कितना हुआ? 200। तो वी नो दैट डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। ओके, पार्ट ऑफ द एडिशनल इनकम यूज्ड फॉर कंजप्शन एंड पार्ट ऑफ द एडिशनल इनकम यूज्ड फॉर सेविंग। मगर यहाँ पर जो चेंज इन कंजप्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? एमपीसी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर एमपीसी क्या शो करता है? एमपीसी 0.8 मीन्स 80% ऑफ एडिशनल इनकम यूज्ड फॉर कंजप्शन। उसी चीज को मैं ले लिया। फिर क्या हुआ? सेकेंड राउंड में देखिए, एडिशनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो हमारा चेंज इन कंजप्शन है वो प्रोड्यूसर्स का चेंज इन इनकम है। तो सेकेंड राउंड में अगेन चेंज इन इनकम इज ₹800 करोड़, क्योंकि राउंड 1 में चेंज इन कंजप्शन कितना है? 800 करोड़। तो मैं बार बार बताया, जो प्रिंसिपल है, वन पर्सन कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम। So here change in consumption by additional consumption of the consumers is the additional income of the producers. So second round में कितना हुआ additional income? 800 हुआ। फिर उसका 80% आप कंज्यूम करो, क्योंकि एमपीसी 0.8 है, 640। सेविंग क्या हुआ? 160। थर्ड राउंड में कितना होगा? तो सेकेंड राउंड में देखिए डेल्टा सी कितना है? 640। सो एडिशनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एडिशनल इनकम, क्योंकि एडिशनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एडिशनल इनकम ऑफ द प्रोड्यूसर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? वन पर्सन कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम। एडिशनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ वन पर्सन इट इज इक्वल टू एडिशनल इनकम ऑफ अनदर पर्सन। सो अगेन थर्ड राउंड में एडिशनल इनकम कितना हुआ? 640। अगेन 640 का 80% आप कंज्यूम करो। तो ऐसे प्रोसेस चलेगा। अल्टीमेटली फाइनल इंक्रीज इन इनकम इज 5000 करोड़। हमको कैसे मिला? ना इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर फॉर्मूला 1/1 माइनस एमपीसी। एमपीसी वहां पर 0.8 है, तो यहां पर मल्टीप्लायर 5 हुआ। तो मल्टीप्लायर 5 मीन्स फाइनल इंक्रीज इन इनकम इज 5 टाइम्स इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। सो इन दिस इट मीन्स एग्जाम्पल, इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज 1000 करोड़ एंड मल्टीप्लायर इज 5.
So final increase in income definitely would be 5,000 crores. It is 5 times initial increase in investment. क्लियर? तो सेम फॉर्मूला डाल के सपोज डेल्टा वाई फाइनल इंक्रीज इन इनकम निकाल दिया, तो डेल्टा सी हम कैसे निकालेंगे ना? फाइनल इंक्रीज इन इनकम का 80% कंज्यूम करो। 5,000 का 80% कितना है? 4,000। वो है इट मीन्स इंक्रीज इन कंजप्शन। तो इंक्रीज इन सेविंग कितना होगा? माइनस कर दो 5,000 माइनस 4,000, इट इज 1,000 करोड़। क्लियर? ये ऐसे प्रोसेस है, जो प्रोसेस में बताया पहले वही प्रोसेस। डेल्टा आई एडिशनल इन्वेस्टमेंट जनरेट्स एडिशनल इनकम, एडिशनल इनकम लीड्स टू एडिशनल कंजप्शन, एडिशनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर लीड्स टू एडिशनल इनकम, क्योंकि एडिशनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ओके इट इज इक्वल टू एडिशनल इनकम ऑफ द प्रोड्यूसर्स। हमारा जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो प्रोड्यूसर्स का इनकम है। तो इसी प्रोसेस में हम डिराइव किया। ओके तो एक डायग्राम में देख लो। इन दिस डायग्राम यू सी एडिशनल इन्वेस्टमेंट इट इज एफ जी, डेल्टा आई लिख दिया क्योंकि डी सी प्लस आई है एग्रीगेट डिमांड। जब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में वृद्धि हुआ, डेल्टा आई पार्ट को देखो एफ जी, है ड्यू टू एडिशनल इन्वेस्टमेंट एफ जी, देन फाइनली इनकम इंक्रीज बाय हाउ मच? वाई वाई वन। फाइनल इंक्रीज इन इनकम इज वाई वाई वन, डेल्टा वाई। ओके इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज एफ जी, यू सी जी एफ पार्ट यू सी एडी टू एडी वन एग्रीगेट डिमांड, एडी is C plus I and AD1 it is C plus I plus delta I. So here in diagram increase in investment is GF, it is delta I, and final increase in income is YY1. Clear? तो सेम चीज यहाँ पर मैं लिख दिया, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू फाइनल इंक्रीज इन इनकम बाय इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। So here final increase in income is YY1, final increase YY1 is the final increase in income, and increase in investment is FG, FG। क्लियर? तो ये और नेक्स्ट पार्ट में हम जाएंगे बैकवर्ड वर्किंग। बैकवर्ड में जस्ट उल्टा है, इन्वेस्टमेंट कम होगा, जब हम इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तब हमारा क्या होगा? मल्टीपल वे ऑल्सो इनकम डिक्रीजेस, मल्टीपल मैनर ऑल्सो इनकम डिक्रीजेस। सो वही चीज बैकवर्ड वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर और ऑल्सो पॉपुलरली कॉल्ड रिवर्स वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर, वेरी इंपॉर्टेंट वन। ओके जो फॉरवर्ड वर्किंग है वहां पर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, मगर बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर और रिवर्स वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर इसमें क्या होगा ना? इन्वेस्टमेंट कम होगा। इफ विथ फॉल इन इन्वेस्टमेंट देयर इज मल्टीपल टाइम्स डिक्रीज इन इनकम। यदि इन्वेस्टमेंट कम होगा तब हमारा जो इट मीन्स इनकम डिक्रीज होगा, वो इट मीन्स जितना इन्वेस्टमेंट कम हुआ उसका मल्टीपल आकार में इनकम कम होगा। तो हियर एक्चुअली डिक्रीज इन इनकम इज मल्टीपल ऑफ फॉल इन इन्वेस्टमेंट, डिक्रीज इन इनकम इज मल्टीपल ऑफ फॉल इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में कम होगा तभी मल्टीपल मैनर में हमारा इनकम भी कम होगा। इट इज कॉल्ड बैकवर्ड वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर। एक एग्जांपल आप देख लीजिए, इन्वेस्टमेंट में कम हुआ 1,000 करोड़, इफ डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज 1,000 करोड़ एंड एमपीसी 0.8, तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला डाल दो, मल्टीप्लायर इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, तो मल्टीप्लायर 5 हुआ। इट मीन्स बाय हाउ मच इनकम डिक्रीजेस? So final decrease in income is 5 times decrease in investment। जो इनकम में इट मीन्स कमी आया वो 5 गुना इन्वेस्टमेंट का कमी का 5 गुना हुआ। सो फाइनल डिक्रीज इन इनकम इज 5 टाइम्स डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ओके सो here you see final decrease in income is equal to K into delta I। okay you know that multiplier formula it is delta Y by delta I। It is the ratio of in this case backward working of the multiplier में multiplier is equal to final decrease in income by initial decrease in investment। Final decrease in income it is delta Y divided by initial decrease in investment it is delta I। So delta Y is equal to K into delta I। Clear? So यहाँ पर थोड़ा डायग्राम देख लो। यहाँ पर डायग्राम में देख लो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रहा है EG। ओके एग्रीगेट डिमांड 81 था, अभी एग्रीगेट डिमांड इट मीन्स मूव टू 80। क्यों एग्रीगेट डिमांड कम हुआ? क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम हुआ। ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम होने से एग्रीगेट डिमांड कम होगा। ओके सो एग्रीगेट डिमांड 81 मूव टू 80 ड्यू टू डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर जो डायग्राम में डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर EG है, डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर EG है। तो जब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम हुआ उससे इनकम कम होगा। इनकम कितना कम हुआ? Y2 Y1। ओके फाइनल डिक्रीज इन इनकम इज Y2 Y1।
तो और एक बार बता रहा हूँ, इट मीन्स डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज ईजी, यू सी डाउनवर्ड आरो मार्क ईजी, और ड्यू टू दिस फाइनल डिक्रीज इन इनकम इज Y2 Y1। आरो मार्क में बैकवर्ड वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर लिख दिया। तो यहाँ पर देख लीजिए इन द डायग्राम, सेम थिंग आई हैव रिटन हियर इन द डायग्राम, AD1 curve intersects A curve at point E and equilibrium level of income is Y2 on account of decrease in investment easy, decrease in investment is easy। पहले जो एग्रीगेट डिमांड, ओरिजिनल एग्रीगेट डिमांड AD1 इंटरसेक्ट एग्रीगेट सप्लाई कर्व एट पॉइंट E and corresponding equilibrium level of income was Y2, but due to decrease in investment EG, then income decrease by Y2 Y1, final decrease in income is Y2 Y1 due to decrease in investment by EG। जो इन्वेस्टमेंट में कम हुआ, EG कम हुआ, उसमें जो इनकम में कम हुआ वो Y2 Y1 है, उसी को हम यहाँ पर शो करेंगे। इन्वेस्टमेंट डेल्टा Y बाई डेल्टा I, डेल्टा Y मीन्स हियर फाइनल डिक्रीज इन इनकम डिवाइडेड बाई डेल्टा I मीन्स इट इज डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, सो EG बाई Y2 Y1। तो फॉरवर्ड वर्किंग में हम क्या दिखाएंगे कि इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होगा और फाइनल इंक्रीज इन इनकम मस्ट बी मल्टीपल ऑफ इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। और बैकवर्ड वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर और रिवर्स वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर, इट इज फाइनल डिक्रीज इन इनकम इज मल्टीपल ऑफ इनिशियल डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। यदि इन्वेस्टमेंट में कमी आएगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा, तब जो इनकम कम होगा मल्टीपल मैनर में इनकम कम होगा, वही बैकवर्ड वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर और रिवर्स वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर। और जो फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर है वो इनकम प्रोपागेशन, वहाँ पर इनकम एक्सपांड होता है, इनकम बढ़ता है, क्योंकि जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट का बहुगुणा इनकम बढ़ जाता है। इट मीन्स फाइनल इंक्रीज इन इनकम इज मल्टीपल ऑफ इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इसको इनकम प्रोपागेशन प्रोसेस भी कहा जाता है, जो फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर को। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस में लिख दिया, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर विद द हेल्प ऑफ ए न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड MPC विथ एग्जाम्पल। ये सब डिस्कस कर चुका हूँ। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, वर्किंग मीन्स यहाँ पर फॉरवर्ड वर्किंग, इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होगा। एक्सप्लेन इट्स वर्किंग यूजिंग ए सुइटेबल न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, वो जो टेबल किया, एक अजम्पशंस लेके एक टेबल किया, वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर, फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर, उसी को डिस्कस करना है। डिफाइन मल्टीप्लायर, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन MPC एंड मल्टीप्लायर, कैलकुलेट MPC इफ द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज 4। मल्टीप्लायर का वैल्यू दिया है MPC, वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर K इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस MPC, K इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस MPC। K का वैल्यू दिया है तो MPC का वैल्यू निकालना है। अज्यूमिंग दैट, एक अज्यूम किया है, जैसे हम वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर अभी किया, फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर, जैसे हमारा एडिशनल इन्वेस्टमेंट था 1000 करोड़ और MPC था 0.8, यहाँ पर इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट रुपीज 900 करोड़ एंड MPC 0.6। आपको एक टेबल करना है, वही प्रोसेस, डेल्टा I लीड्स टू डेल्टा Y, डेल्टा Y लीड्स टू डेल्टा C, डेल्टा C लीड्स टू डेल्टा Y। अभी मैं फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर उसी तरीके से टेबल किया, उसी तरीके का आपको एक टेबल करना है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड MPS विथ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, इसको भी डिस्कस कर चुका हूँ। और लास्ट क्वेश्चन है रिवर्स और बैकवर्ड वर्किंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विथ सुइटेबल न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। ओके, ये सब मैं डिस्कस कर दिया। तो आज इतना ही है फ्रेंड्स। प्लीज़ अगेन जस्ट आई अप्रोच टू यू, प्लीज़ सब्सक्राइब मी, माई चैनल इज असित सर इकोमानिया, माई नेम इज असित कुमार पटनायक। प्लीज़ लाइक मी एंड कमेंट मी। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।